सी आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. थाईलैंड में रैली होती है, वहाँ पे तो आप आराम से इजीली रेंट करके जा सकते हो, एंड ऑब्वियसली यू गेट अ इंटरनेशनल टाइटल इफ यू विन. आई थिंक देयर आर सर्टेन ड्राइवर्स हु आर गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, जाते हैं वो, बट इट्स चीप. थाईलैंड इज चीप. But why is it that something like that is not being replicated in India? अगेन लाइक आई सेड, माइलेज. मतलब कोई भी बंदा किसी इवेंट को भी स्पॉन्सर करने. नाउ I'll give you a small example. Maruti Motorsports was the biggest motorsport manufacturer backed up company थी जो events को sponsor करती थी, and उनके खुद के events होते थे तो बहुत बड़े रूप में करते थे. Exactly. For so many years, they're not there anymore. So there has to be a reason why these companies are not coming in and making a team for themselves. Even in India. आपको क्या लगता है हमारे इंडियन ड्राइवर्स बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं. It's just a matter of training that they want. आज हम यहाँ पे 200 bhp 150 bhp की गाड़ी भी नहीं चला रहे, बाहर तुम्हारे को 300 bhp की गाड़ी चलानी है. So it's just a matter of time. You have to get used to it. What's the story behind Auto Attitudes? जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम ये जिप्सी में लेके गया था, ये दिस वाज एन आर्मी ऑक्शन जिप्सी व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर माय सेल्फ. दिस वाज अ 98 मॉडल व्हिच आई कन्वर्टेड इनटू एन MP5 एंड देन 1600. आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि लोगों के पास नई नई जिप्सीज वगैरह भी थी. सो आई गॉट अ गुड रिस्पांस कि अमन तेरी यार गाड़ी तो वाज लुकिंग ब्रांड न्यू, मतलब क्या किया. सो दैट्स हाउ आई गॉट फ्यू ऑर्डर्स टू बिल्ड रैली कार्स. मतलब बैठे बैठे आई डिडंट हैव अ वर्कशॉप, नथिंग, कि अमन यू बिल्ड इट फॉर अस. नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस, टू साउथ भी गया है, तेरे को पता है, यू हैव वन सो मेनी इवेंट्स. यू नो आई एम नॉट अ इंजीनियर, आई डोंट हैव अ ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड और एनीथिंग. आई एम अ बीटेक इन लेदर. मतलब मेरे को लेदर बनाना आता है, मेरे को आई डिड FTTI, मतलब मैंने जूता बनाना भी सीखा है. बट देन ऑटोमोबाइल वाज समथिंग व्हिच मतलब इट्स नॉट ईजी. बहुत कुछ है इसमें सीखने को, और अभी भी मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, यू नो. आई एम ओपन अबाउट इट. Now, I'll ask you a few questions I have in general about motorsports in India, Bhaiya, because I've spoken to so many people. I've spoken to some young upcoming drivers also, like Muskan Jubbal I spoke to very recently. I spoke to Aman Nagdev. Young में तो अभी इन्हीं से बात करी है. Then our beloved Anmol Rampal, I had a detailed conversation with him. He has a very interesting perspective about motorsports in India. But in general, बहुत लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में मोटरस्पोर्ट्स का स्कोप है नहीं. सो लुकिंग एट हाउ मोटरस्पोर्ट्स इज करंटली हैपनिंग इन इंडिया across the country or probably even north and south, and if you were to put a perspective to it, what is your view on it? See, Radha, you've been seeing what it was a couple of years back and what is now. You hardly see any events which are happening this side of the country, north side. पहले हमारे नॉर्थ साइड के ऊपर there were a lot of events, good events used to happen, and at a very large scale. Autocross events, almost like, I think in a season, in a year, almost close to 7-8 events. You know, Maruti Suzuki used to hold a lot of events, championships थी. आपकी Desert Storm रैली होती थी. मतलब there were so many events. दक्षिण दे रैली साउथ में होती थी. रेड दे हिमालय, you know, वो which is now Rally of Himalayas because Suresh Rana has started doing it. So there are so many events which are literally over, and these were one of the best events that you could actually participate in. So what I foresee and what I see and what is going on, I see there are not majority of events which are taking place now here. The only event that you see happening, which is almost every month, is the INRC, जो चल रही है, and it is continuously going and going. अगर आप रैलिंग की बात करो तो रैलिंग के अंदर सजोबा है. So सजोबा is not the same सजोबा that we used to drive. It has become more, lowland rallying. आपकी दक्षिण देर नहीं है, आपकी डेजर्ट स्टॉर्म नहीं हो रही है, आपकी चलो सुरेश राणा हैज टेकन इनिशियल. दक्षिण इज आल्सो शट. या दक्षिण इज नॉट हैपनिंग फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ. ओके. तो बीच में हुई थी, आई थिंक देयर वाज वन इवेंट व्हिच हैपेंड, बट उसके बाद दोबारा नहीं हुआ. अच्छा. टॉकिंग अबाउट रेड द हिमालय, इट गॉट शट डाउन. Then Suresh Rana started doing by the name of Rally of Himalayas, which is pretty good. Still he's managing something and he's doing it. And now he's successfully doing it for 3 years now. So which is good. I don't see any events happening here. Do you see any autocross? अभी मुझे मालूम है कि I was an avid participant for autocross events. कुछ और नहीं हो रहा, रैलिंग नहीं हो रही, but अब के autocross events हो रहे थे. अब लक्ष्य used to do dirt events. He's not doing it anymore. He's more focused on the tarmac events, race wars. So the demand and the need
for the hour is, I think, totally different now in the younger generations. People are enjoying more drifts, sessions and tarmac races, because to be very honest, I think anybody who has a good car can drive on a tarmac without breaking his car. Just, your tires go bad. But in autocrosses, in your rallying, everything breaks down. There are a lot of breakages and extra afterward maintenance is required. Whereas in your tarmac events, nothing such, things are required apart from your tires basically getting burnt out. So I don't see motorsports on a very high level in India as of now. This is my perception. Of course. Because I've been into this industry for past 24 years now, and I've seen every aspect of rallying, racing, everything. So it is just the INRC which is happening throughout the year. And down south, mainly, it is happening. We don't have anything which is happening this side, apart from Sajoba and Rally of Himalayas. I mean, I've been observing in events like IRL and even Indian F4. Indian F4 का तो ज़्यादा नहीं पता, but IRL पे मैं observe कर रहा हूँ, कई सारे हैं जो foreigners आके यहाँ पे रेस कर रहे हैं और Indians are not very keen. I don't know how keen they are, but it looks like they are not moving towards that direction. Why do you think that is happening? See, to be very honest, what I see is कि all the foreigners that are coming in, they are either backed up by the manufacturing team or have a decent sponsors with them. So, and they're spending money to come in and do the race here because you have good tracks here. And it's a good exposure for them also. But how many people do you see and are going outside from here? कितना आपको प्रमोशन मिल रहा है, कितना आपको स्पॉन्सर मिल रहा है कि obviously when you're doing an international event there's a certain kind of budget that you look at. Now वो बजट उनके पास है या नहीं है. आपके पास अगर बजट नहीं है तो you are only limited to your own country events, right? बाहर जाने का आप सोच ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास फंडिंग की बैकिंग नहीं है या आपके पास खुद की बैकिंग नहीं है. इवन इफ यू हैव द बैकिंग, आप कितनी बार वो इवेंट्स को कंटिन्यू और रिपीट करोगे. हमारे रैलिंग के अंदर भी आप देख लो कितने सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल जाके करके आते हैं और कितने कंसिस्टेंसी है वो इवेंट्स के अंदर, वो पार्टिसिपेंट्स की, वो जाके करने की. देयर वेरी फ्यू ऑफ देम. एक ही है मेरा ख्याल इंडिया से, तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम गौरव गिल कौन गया. एग्जैक्टली, मतलब हैं, देयर आर इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन थाईलैंड जो लोग जाते हैं करके आते हैं, बट दैट इज नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो आई फील कि I don't know, मतलब it's a difficult question to answer, but what I see in India, motorsports के अंदर आपको तब तक hype नहीं मिलेगा जब तक आपके पास Indian manufacturers आपको backing नहीं देगा. The manufacturers have to come in, the teams should be formed, sponsors should come in, there are bigger oil companies, so many sponsors जो आते हैं. अब देखो आपका क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्रिकेट हमारा इंडिया के अंदर इट्स लाइक द गॉड ऑफ स्पोर्ट्स. तो छोटे छोटे इवेंट्स को भी अगर आप छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी अगर एक सर्टेन लेवल के ऊपर आप स्पॉन्सर करेंगे, आई थिंक वी कैन मेक इट बिग. बट टेल मी वन थिंग, आई मीन ये तो जैसे आप बता रहे हो कि इंडिया से अगर कोई बाहर जाना चाहता है, मैं तो कह रहा हूँ इंडियंस ही अगर IRL या इंडियन F4 तक जाना चाहते हैं, तो अगर बाहर की कंपनीज इस चीज़ के लिए दे आर पुटिंग इन मनी, व्हाई वुड द आउटसाइड कंपनी वुड पुट इन मनी टू समबडी फ्रॉम इंडिया? To be very honest, where they have their own manufactured no. So like let's say a German driver in IRL, Indian Racing League, is being sponsored by another German company, let's say. So why is it that Indian companies are not ready so easily, or I should not use the word easily, but Indian companies are not ready to sponsor an Indian driver for the same event? I think they feel they're not getting mileage out of it. आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर, आपने do you see any channel which is dedicated to motorsports of India? No. I was wanting to ask you that also कि ये भी क्यों हो रहा है. अब आप ये देख लो, हमारे जो रैलिंग भी होती है, आपने देखा होगा रैलिंग कोई एक टेलीकास्ट हुई है, उस रैलिंग के अंदर अगर 30 मिनट्स का वो कैप्सूल है, उस 30 मिनट्स के अंदर आपको कितना दिखता है कंटेंट, कितना उसमें एड्स हैं, तो जो स्पॉन्सर है उसको अपनी माइलेज मिलेगी कैसे? That's what happened with me also when I was rallying and I was going to a sponsor. तो the only thing that they said कि अमन हमें माइलेज नहीं मिलती रैलिंग के अंदर. आपका कहीं पे लाइव टेलीकास्ट नहीं है. People want to see live events happening. They want to see what is happening,
तो अब आज के हमारे इसके अंदर आपके हमारे पास लाइव रिजल्ट्स हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं, यू नो, so many things we can improve here in India, so that people जो sponsors हैं they should actually get the worth for their money. अगर उनको लग रहा है कि अगर मैं किसी एक ड्राइवर को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो मुझे माइलेज तो मिलनी चाहिए, मेरा ब्रांड कहीं दिख तो रहा है। आपका सपोजली एक न्यू कमर आया है इंडस्ट्री के अंदर, इज नॉट अ गुड ड्राइवर, लेकिन उसके पास स्पॉन्सर है, ठीक है, अच्छा खासा स्पॉन्सर है, वो गाड़ी दिखेगी नहीं पूरे उसमें, क्योंकि वो इज डाउन द पैक। आपको गाड़ियां जो दिखती हैं वो टॉप ऑफ द कार्स की टॉप 5 ड्राइवर्स दिखाई देंगे, बाकी का कहाँ है लॉट। वो स्पॉन्सर अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेगा, या ड्राइवर उस स्पॉन्सर को जस्टिफाई कैसे करेगा जब उसको माइलेज ही नहीं मिल रही। आपको देखा होगा कि जब इंटरव्यूज भी होते हैं तो इंटरव्यूज किसके होते हैं, राइट? स्टेज के ऊपर जब एक कॉमन कॉन्फ्रेंस होती है उसके ऊपर कौन से ड्राइवर्स बैठे होते हैं? तो टॉप, ठीक है, मानता हूँ टॉप ही बैठते हैं, लेकिन अगर एक स्पॉन्सर किसी जूनियर लेवल को या एक सेकंड ग्रेडेड ड्राइवर को मिल रहा हुआ है तो बेचारा कैसे बैकअप देगा स्पॉन्सर को? उसकी रीजनिंग क्या होगी कि मेरे को आप दोबारा स्पॉन्सर करो? सो आई फील वी हैव अ मेजर इशू इन टर्म्स ऑफ देयर इज नो मोटर स्पोर्ट टेलीकास्ट इन इंडिया। है ही नहीं कुछ, देयर इज नथिंग एट ऑल। ठीक है, आपके जो प्राइवेट जो INRC में चल रहे हैं वो प्राइवेट ही तो चल रहा है जो टेलीकास्ट हो रहे हैं, राइट? इट इज नॉट अ डेडिकेटेड चैनल विच इज देयर। सो टिल द टाइम देयर इज अ डेडिकेटेड चैनल which is dedicated to Indian motorsports, तभी स्पॉन्सर आएगा। कि मुझे मालूम है कि आज INRC हुई है, INRC के 7 डिफरेंट इवेंट्स हैं, चैंपियनशिप है, उसके अंदर ये ड्राइवर्स हैं, हर ड्राइवर की एक पोजीशन है, एक ग्रेडिंग है, ऐसे करके स्पॉन्सर्स आते हैं, एंड देन द स्पॉन्सर हैज द राइट टू चूज बिटवीन द राइट ड्राइवर, कि उनको पता है कि मेरे टॉप 5 ये ड्राइवर्स हैं, मेरे को इनको स्पॉन्सर करना है, एंड दैट इज हाई फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री यू कैन गो आउट एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री। ओके, नाउ गौरव गिल इज गोइंग एंड ही इज डूइंग इट एंड ही इज मेकिंग एवरीबॉडी प्राउड, राइट? बट कितने लाखों में एक है, आई विल से करोड़ों में, राइट? But tell me one thing. Now you mentioned about Gaurav Gill. I hope I get the opportunity to do a podcast with him very soon. But tell me one thing. ऐसा क्या है? What is he doing right, which a lot of the rally drivers or motorsports guys in India are not doing it? Because Gaurav Bhaiya seems to have reached a great level in terms of making this as his profession. So ऐसा क्या है कि उन्होंने सही किया है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या और कोई रैली ड्राइवर या मोटर स्पोर्ट्स का there बंदा were नहीं other समझ पा रहा drivers है? also who went abroad, but I think they never wanted to pursue so much. नरेन थे पहले, जो पहले इंटरनेशनल Right. करते थे, he was also part of INRC. गौरव गिल is constantly, उसको करना ही यही है, उसको करना ही यही था। You know, I know गौरव गिल for a very long time. मतलब हमने कार्टिंग भी करी हुई है इकट्ठे वगैरह, सब कुछ किया हुआ है। We have done INRCs together वगैरह। He's a great driver. The skills that he has is unmatched. बट ऐसा नहीं है हमारे पास और कोई ड्राइवर्स नहीं है जो अच्छे नहीं हैं, जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते, या आप अपनी JWRC नहीं कर सकते, या आप WRC में नहीं जा सकते। सी आराध्या, अगेन इट कम्स टू आपको कितना स्पॉन्सर मिलेगा एक ड्राइवर को, इंडियन ड्राइवर को WRC में स्पॉन्सर करने के लिए। इट इज़ इन करोर्स वन इवेंट। दकार के अंदर भी Car itself is worth that much money. अब दकार के अंदर कौन जाता है? कोई गया है? संतोष इज गोइंग बिकॉज फैक्ट्री बैकिंग है। नाउ देयर आर फ्यू बाइकर्स हु आर गोइंग, लेकिन आपने किसी गाड़ी वाले को देखा है जाते हुए? हम संजय टाकले, आई थिंक ही इज गोइंग In 4-wheelers. इन 4-wheelers, क्लासिक में है कोई, आई थिंक दैट्स द न्यूज़ आई रेड। Okay. सो ही इज गोइंग, सो बैकिंग है तो जा रहे हैं। आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल? आई हैव अ ड्रीम, कि मेरे को भी जाना है। एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम टू डू समथिंग बिग, एवरीबडी हैज़, who's into rallying, who has passion for cars, passion for races, motorsport। जो बाइकर है उसको बाइक में अपने ग्रैंड पी पे जाना है ना, किसी को फार्मूला 1 पे जाना है। कितने लोग हैं जो इंडिया से, आपको क्या लगता है अगर हमारे को एक राइट एजुकेशन एंड राइट प्लेटफॉर्म मिले और एक राइट काइंड ऑफ बैकिंग मिले, हमारे पास इंडियंस में ड्राइवर्स अच्छे नहीं हैं? बहुत है। आई एम टेलिंग यू, cream of drivers can come out from Indian motorsports. Whether it's rallying, whether it's circuit racing, whether it's MotoGP, whether it's anything, whether it's motocross. We have talent here. It's just that ये talent बाहर नहीं जा पा रहा। जब तक इंडिया से talent बाहर नहीं जाएगा, आपको क्या पता है उसका पोटेंशियल क्या है?
तो टैलेंट बाहर कैसे जाएगा जब उस टैलेंट को आप प्रमोट करोगे? जब आप प्रमोट ही नहीं करोगे तो वो बेचारा अपनी ही टेरिटरी में बैठा रहेगा ना। हम रैलिंग कर रहे हैं तो रैलिंग के अंदर क्या, इट इज नॉट अबाउट स्किल, इट इज अबाउट स्किल। अब यहाँ अब साउथ के अंदर रैलिंग स्कूल वगैरह होते हैं, यू नो, न्यू किड्स आर कमिंग एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम ड्राइवर्स, व्हिच इज गुड। उसके बाद क्या? प्लीज थिंक, उसके बाद है क्या? आर देयर पेरेंट्स गोइंग टू सपोर्ट कि तुम जाओ, हम तुम्हें बैक करेंगे? आपकी फैमिली भी कितना आपका बैकअप करेगी? इट इज रिक्वायर्ड टू, मतलब यू डोंट हैव नंबर्स कि आपको कितना पैसा चाहिए, यू नो, द नंबर्स आर बिग। So, by any chance, would you have like a number in mind and with an example of a certain event जहाँ पे कि आप ये बता सको कि अगर ये इवेंट मान लो कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो इतना पैसा लगता है, इंक्लूडिंग द कार्स कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग द इवेंट्स कॉस्ट एंड एवरीथिंग? सी, आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। थाईलैंड में रैली होती है, हाँ, एंड यू नो, वहाँ पे तो आप आराम से इजीली रेंट करके जा सकते हो, एंड ऑब्वियसली यू गेट अ इंटरनेशनल टाइटल इफ यू विन। देयर सर्टेन ड्राइवर्स हु आर गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, जाते हैं वो, बट इट्स चीप। थाईलैंड इज चीप, मतलब आप 2.5-3 लाख के अंदर अपना पूरा इवेंट करके आ सकते हो, रियली? इंक्लूडिंग रेंटल ऑफ द व्हीकल, यू आर स्टेइंग एंड एवरीथिंग। यार, सो यू हैव चॉइसेस टू हायर अ स्विफ्ट, हाँ, इज़ुज़ू डी-मैक्स वहाँ पे बहुत चलते हैं, हाँ। यू नो, तो आप हायर कर सकते हो वहाँ पे। देर आर टीम्स हु विल दिस थिंग। अगर आपके स्पॉन्सर है तो नथिंग लाइक इट, यू कैन डू द एंटायर चैंपियनशिप। but why is it that something like that is not being replicated in India? Well, If at all you have an answer for that, I mean. see, I actually don't have an answer for this because Okay. again, like I said, mileage. मतलब कोई भी बंदा किसी इवेंट को भी स्पॉन्सर करने, नाउ I'll give you a small example. Maruti Motorsports was the biggest motorsport manufacturer backed up कंपनी थी जो इवेंट्स को स्पॉन्सर करती थी, एंड उनके खुद के इवेंट्स होते थे तो बहुत बड़े रूप में करते थे। एग्जैक्टली फॉर सो मेनी इयर्स। दे नॉट देयर एनीमोर। व्हाई? इंटरनेशनली आप देखो सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट? है ना, हमारे इंडिया में क्यों नहीं आ रहे? फॉर व्हाट रीजन? So there has to be a reason why these companies are not coming in and making a team for themselves, even in India. आपको क्या लगता है हमारे इंडियन ड्राइवर्स बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग दैट दे वांट। आज हम यहाँ पे 200 bhp 150 bhp की गाड़ी भी नहीं चला रहे, बाहर तुम्हारे को 300 bhp की गाड़ी चलानी है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यू नो। I think one of the examples, I'm not sure उसकी रैंकिंग क्या आई थी, a young girl अनुश्रिया गुलाटी, तो she went to I think Thailand only and she's gone with Karan Okta. Karan Okta, and I think podium मिला है उसके अंदर। सो ऐसा मैं कह रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि इवेंट्स के अंदर आप बाहर जाके आप जीत नहीं सकते। वी हैव वेरी टैलेंटेड ड्राइवर्स, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई विल से, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास इतने नगीने हैं ना, आई विल यूज दैट वर्ड, कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कितना कर लोगे आप? दैट्स माय क्वेश्चन, कितना कर लोगे आप? ओके, आज की डेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में अगर कोई बंदा मुझे बोले ना कि अमन, आई विल गिव यू 3 लाख रुपीज, यू वांट टू रैली here or you want to do an event in Thailand, I'll go to Thailand and do it, because मुझे मालूम है मुझे थाईलैंड में माइलेज बहुत मिलेगी। इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आई थिंक नाउ आई लाइक टू शिफ्ट द कॉन्वर्जेशन अ लिटिल एंड ट्राई टू, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है, It's a never ending topic. never ending topic I feel, and there's so much we can talk about it. So I'll shift the topic now to get into details as to what made you start Auto Attitudes. What's the story behind Auto Attitudes? Well, very nice question. See, for me, when I started rallying, everything for me was where to organize and get money, right? मेरे को कभी भी ज़्यादा sponsors मिले नहीं हैं, you know. It was all my savings, my hard work, or whatever I was earning. Used to go into my cars and building and doing rally, because I never used to miss any event before. तो जैसे मैंने, like I said, I spent a lot of time in South with Swami, you know, Swaminathan, and he taught me a lot of things, how to build a vehicle. To be honest, I actually understood building a vehicle from him. Okay. Because that's where I had this thing कि नहीं यार अब गाड़ी अपनी खुद बनानी, when I wanted to shift to a gypsy.
सो लाइक आई सेड कि मैंने डिफरेंट लोगों के पास जाके अपनी जिप्सी वगैरह तैयार करी थी, बट इट वाज हाई टाइम कि आप कितना पैसा बाहर देख के गाड़ियाँ तैयार कराओगे इफ़ यू वांट टू रियली डू समथिंग एंड बिल्ड योर ओन व्हीकल. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू बी, मतलब आई डिडंट मेंशन दिस, जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम ये जिप्सी मैं लेके गया था, ये दिस वाज एन आर्मी ऑक्शन जिप्सी व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ. दिस वाज अ 98 मॉडल व्हिच आई कन्वर्टेड इनटू एन MP5 एंड देन 1600. आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि लोगों के पास नई जिप्सीज वगैरह भी थी. सो आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स किया, मैं तेरी यार गाड़ी तो वाज लुकिंग ब्रांड न्यू, मतलब क्या किया. सो दैट्स हाउ आई गॉट फ्यू ऑर्डर्स टू बिल्ड रैली कार्स. मतलब बैठे बैठे आई डिडंट हैव अ वर्कशॉप, नथिंग, कि अमन यू बिल्ड इट फॉर अस. नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस, टू साउथ भी गया है, तेरे को पता है, यू हैव वन सो मेनी इवेंट्स. I think something similar happened with Phil also. Now I remember, as you mentioned. Okay. So this is how it's, you know, I am not an engineer. I don't have an automobile background or anything. I am a BTech in leather. मतलब मेरे को leather बनाना आता है. मेरे को I did FTTI, मतलब मैंने जूता बनाना भी सीखा है. But then automobile was something which मतलब it's not easy. बहुत कुछ है इसमें सीखने को. और अभी भी मेरे को बहुत कुछ नहीं आता है, ना. I'm open about it. So and you learn when you're there with it. अदरवाइज थियोरेटिकल आप जितना भी पढ़ लो और आपको नहीं आता, नहीं समझ आता, तो यू कांट डू इट. तो यू नो आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट वर्कशॉप्स. वहाँ पे जो मेरे पास गाड़ियों के ऑर्डर मिले थे तैयार करने का, आई स्टार्टेड बिल्डिंग कार्स आउटसाइड समबडीज वर्कशॉप. ओह, आई हैड 3 people विद मी. आई स्टार्टेड बिल्डिंग कार्स. पहले तो मैं उन्हीं की वर्कशॉप में काम लाता था. आई यूज्ड टू हायर देम कि आप ये काम करके दो. आई स्टार्टेड कमिंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो. यू नो, इट वाज समथिंग नाइस कि ठीक है यार, योर पैशन इज कन्वर्टिंग इनटू योर ब्रेड एंड बटर, व्हिच वाज नाइस. सो देन आई टोल्ड माय डैड कि डैड, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू नाउ एंड आई एम गोइंग टू लीव व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इट नाउ. So I left my business, this thing, and my dad was very supportive. And this was after how long you doing the workshop thing? I started in 2009. And Okay. 2008 के अंदर से मेरे को इंक्वायरीज आती थी काम करने की, और छोटी मोटी है ना. आई बिल्ड स्मॉल कार्स फ्रॉम स्मॉल पिक्चर्स में कर रहा था And ऑटोमेटिक. 2009 you asked your dad कि आई एम क्विट्स विद माय बिजनेस. एक साल में. हाँ, मतलब मैंने सोचा था कि अब मुझे करना ही है तो करना ही करना, बिकॉज डैड एनीवेज वाज नॉट इन इंडिया, ही वाज ट्रैवलिंग. बिकॉज हमारा जो बिजनेस था तो लेदर था हमारा. सो वी यूज्ड टू मेक लेदर, यू नो, गारमेंट्स, जैकेट्स हम बनाते थे. तो वो जब ख़त्म करने गए ना, सो डैड वाज एक्चुअली सेटल्ड इन अमेरिका फॉर क्वाइट सम टाइम. तो उधर ही थे. देन आई टोल्ड हिम कि सो वी रैप्ड अप एवरीथिंग इन इंडिया. So he shifted everything there. उन्होंने अपना ही सब कुछ बनाया, and then he was doing something there. So I was completely focused on my work then. उसके बाद 2009 के अंदर जब मेरे को ऐसे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, and I was working outside somebody's workshop वगैरह. So within 6 months, these guys told me, my workers, you know, they are with me now also. Oh wow. कि सर आप अपना छोटा सा गैराज ले लो, आपके पास काम आता है, आप क्यों मना कर रहे हो लोगों को. सो आई वेंट होम, डिड माई कैलकुलेशंस, क्योंकि यू नो टू स्टार्ट अ वर्कशॉप आपको बहुत चीज़ें चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए. अभी तो मैं किसी की वर्कशॉप से टूल्स हायर करके गाड़ियाँ तैयार कर रहा हूँ, इसके पास जाके ये उठा के ला रहा हूँ, ऐसे करके मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ, यू नो. सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई थॉट इट्स हाई टाइम, लेट्स डू इट. सो सेक्टर 4 के अंदर, नोएडा के अंदर ही, आई टुक अ वेरी स्मॉल स्पेस. जितनी मेरी ये बाहर वाली गैलरी है, दैट वाज व्हाट आई हैड. Oh. एंड देन आई हैड अ सेपरेट ऑफिस. एक मतलब 4 में ही उनका एक छोटा सा ऑफिस और था जो अलग रूम था. तो आई कन्वर्टेड माई ऑफिस देयर, एंड मेरा वर्कशॉप ऐसी था, मतलब एज डोर था एंड यू कुड गो इनटू दिस. Okay. सो इन दिस लेन विद माई सीइंग इन अ मंथ्स टाइम आई वाज लोडेड विद जिप्सीज. मतलब इट वाज जैम पैड की मेरे को कुछ घर पे खड़ी करनी पड़ती थी, कुछ दोस्तों के यारों में खड़ी करनी पड़ती थी. इतना काम मेरे पास फ्लड हो चुका था. And this was only for rally preps. ओनली रैली प्रेप्स. Okay. एंड मैंने इतनी रैली गाड़ियाँ बनाई हैं, इतनी बनाई हैं कि आई कैन नॉट इवन नंबर इट. If I ask you like just an approximate number of gypsies or rally vehicles that you've prepared in your I won't talk tenure. about rally vehicles only. Okay. On record, 1,000 gypsies I've already built in these years. I've crossed that number. Okay. And I'm talking about only auction vehicles. जो civilians की, जो customers की गाड़ियाँ खुद आती थी, जिनके खुद के customers थे गाड़ियों के, वो मैंने अभी काउंट नहीं करे. These are my auction vehicles that I have distributed over 2009. मैं 1000 जिप्सियाँ पार कर चुका हूँ अभी तक, which is a very big number. So you're averaging approximately, I mean, if you look at it, about 80 gypsies a year, 70 to 80 gypsies. Wow. अब तो काम देखो, पहले उस टाइम के ऊपर सी अगेन आ रहा था, like I was mentioning before. हाँ. जब से NGT आया ना, the whole game has changed.
People, why I used to pick up these older cars, the carburetor versions, क्योंकि Japanese chassis होती थी. Okay. It was more thicker. The body, this body, was much more stronger. बहुत ज़्यादा strong होती थी. Okay. Not very thin sheet. जो Indian make sheets हैं वो बहुत पतली हैं. जो Okay. after 2000 आई हैं, 2000 जब MP5 convert हुई हैं, Okay. body chassis weight कम होता था. Okay. आर्मी की जितनी भी गाड़ियाँ आती थी, सब heavy duty होती थी. I don't know why the company used to make them that way or how. So we felt it on our cars also. जो मेरी 98 मॉडल थी, पता नहीं कितनी रैलीज मैंने करी हैं, कितना कुछ करा है, never had a bend on the chassis. But जो अब बाकी आई हैं वो बहुत जल्दी डैमेज होती थी. Okay. Okay. So over the years from 2009 to I think to I don't know how many years, unlimited of rally gypsies I built. मतलब every guy who was on the circuit had my gypsy. मतलब कुछ ना कुछ था उसके ऊपर मेरा काम किया हुआ from Auto Attitudes. That's how my Auto Attitude started. And I'm very proud कि जिस तरीके से I've done on this vehicle. बहुत कुछ किया मैंने. I've experimented a lot on I this mean, vehicle. for me, तो I mean, I still sort of give you that khitab of king of gypsy kings. अब वो भी खिताब मिला हुआ है ना. I'm very much with it because gypsy चला रहे हैं, gypsy बना भी रहे हैं, and you're doing well also in a gypsy. तो it gives you that extra kick. So जब ये मैंने रैली का काम वगैरह शुरू किया ना, then I realized in the later stage रैलिंग की जो गाड़ियाँ हम बना रहे हैं ना, it is taking a lot of my time, and the appreciation to build these cars is going down. What do you mean by appreciation to build these cars is going down? See, when you build a vehicle and when you enter into a rallying, neither I, neither you can foresee what is going to happen to a vehicle. Of course. You are in an event. Unless you know the driver. आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी में क्या डैमेज हो सकता है. फॉर योर बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन व्हीकल. ऐसा नहीं है कि अमनप्रीत आलूवालिया अपनी गाड़ी बना रहा है तो अमनप्रीत आलूवालिया की गाड़ी कभी ब्रेक डाउन नहीं होती. माइक कार ब्रेक डाउन. हमें नहीं पता कि ब्रांड न्यू गाड़ियाँ फ्रॉम द शोरूम ब्रेक्स डाउन. कुछ नहीं पता होता जरा फ्यूल लाइन कट हो गई, टैंक पे पत्थर लगा, डैमेज हो गया, कुछ भी हो सकता है. इंजन सीज हो जाता है, आप प्रॉपर रनिंग नहीं करोगे, आपने रेव कर दिया, इंजन सीज हो जाएगा इंजन. राइट. So there's so many, when you build a vehicle, अभी भी मैं कस्टमर्स को यही बोलता हूँ, when you build a vehicle, please do not expect कि आप ये गाड़ी शोरूम से लेकर आए हो, आपने उसे भगा दी है. It will not last. The engine will not last. जैसे हमारे पुराने टाइम्स के ऊपर हम बेस्टर फिएट को रन करते थे, रमा कहते थे जिसे, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा आपको. Your cars will definitely give you those small little nibbling issues. Correct. जो आपको sort out करने ही पड़ेंगी. You do not expect that if you have paid me or my company to build a vehicle, उसमें problem नहीं आ सकती. Problem आएगी because these are the cars which have been taken out from a junk, who are standing in a yard for years or months. बारिश में rusting है, ये है, and it takes a lot of time to build these vehicles. It is not just कि गाड़ी आप शोरूम से लेकर आए, आपने नट फ्लैप लगाया, आपने सीटें चेंज करी और यूर गॉन. अब जैसे जितनी मॉडिफिकेशंस आज की डेट के अंदर थार वगैरह में हो रही हैं, यू आर नॉट बिल्डिंग देम. राइट. इट्स जस्ट द एड ऑन्स यू आर पुटिंग. वी आर बिल्डिंग दीज व्हीकल्स फ्रॉम स्क्रैच. द अमाउंट ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी गोज इनटू दिस. मतलब मैंने एक रफ एस्टिमेट बनाया हुआ है आराध्या कि इसके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं फ्रॉम अ सिंगल नट बोल्ट ऑल्सो. There are 396 parts counted by me myself. 396 parts, मे भी ज़्यादा भी होते हो, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी में हैं. Okay. अब हम लोग कस्टमर्स को जस्टिफाई कैसे नहीं कर पाते. Every year there is a hike of the pricing. You won't believe it. I'm talking about 2009. मेरी एक ऑक्शन व्हीकल की प्राइस 385 होती थी, रोड वर्दी. Okay. Talking about a rally vehicle. Okay. Full rally prepared vehicle for 3,85,000 rupees. Right? A basic simple gypsy. Rally prepared scrutiny okay vehicle. 385 की मैं रिटेल करता था. रिटेल. जबकि उस टाइम पे गाड़ियाँ मुझे मिलती थी 80-90 हज़ार के अंदर gypsies. Over the years, from 385 my retail value, I have left rally work. Now I'm talking about giving vehicles to civilians. Okay, just restored vehicles. Just restored, complete restored vehicles. From 3.85 it has gone to 4.5. From 4.5 it has gone to 5. From 5 it has gone to 5.5. Then 6, and current scenario it is 6.75. Okay, so over the years what has gone different on the same vehicle? It is the demand for this vehicle,
राइट कि ऑक्शन वाले भी जो ऑक्शन कर रहे थे 70-80 हज़ार में हमें गाड़ियां मिलती थी विच वर दी ओल्डर मॉडल्स, वो अब ऑक्शन ही नहीं होती हैं क्योंकि अब इट गोज इनटू दी एनजीटी की स्क्रैप पॉलिसी के अंदर, तो वो जंक बन गई। जो जंक होता था वो स्पेयर पार्ट में कन्वर्ट हो गया। नाउ द हायर मॉडल्स विच आर गेटिंग ऑक्शन्ड, उनकी प्राइस हैज अ सर्टेन ऑक्शन प्राइस। अब एक डीलर एक ऑक्शन नहीं करता, मल्टीपल डीलर्स ऑन एमएसटीसी दे बिड, राइट। वो जब वो बिड करते हैं वो उनके बीच में उनका एक प्रॉफिट डिवाइड होता है। अगर एक गाड़ी उनको सपोजली ये वाली गाड़ी 2015 मॉडल है, अगर उनको 2 लाख रुपए की पड़ रही है बिडिंग, उसके अंदर उसके पास जीएसटी है, उसके अंदर ये बीच के और खर्चे हैं, राइट। फिर ये गाड़ी आती है मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर गाड़ी आती है, 10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 10 बीच के अंदर 50 गाड़ियां हैं, ओके। वो 50 गाड़ियों के बीच के अंदर वो कैलकुलेट करते हैं किसको कितनी जिप्सी चाहिए, किसको कितनी जोंगा चाहिए, किसको कितनी बुलेट चाहिए, किसको कितना 1 टन चाहिए, किसको क्या चाहिए, या किसको कितना जंक चाहिए, ओके, किसको कितनी स्क्रैप गाड़ियां चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है प्रॉफिट के ऊपर कि हमने ये गाड़ियां इतने की खरीदी हैं, अगर ये लॉट इतने का हमारे को पड़ा, अगर 50 लाख का लॉट पड़ा या 20 लाख का लॉट पड़ा है, तो ये जिप्सीज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से दे कम टू अ फिगर। व्हेन टू कम टू अ फिगर, तो जब ये मार्केट में रिटेल करते हैं तो वो अपना भी एक सर्टेन मार्जिन लेके चलते हैं, राइट। सो ओवर द ईयर्स जब एनजीटी नहीं था तो गाड़ियां सस्ती थी, जब एनजीटी आया तो नाउ एवरीबॉडी वांट्स, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, आपको अभी भी वही चल रहा है कि यार हमें गाड़ी चाहिए ऊंची लेकिन हमें चाहिए गाड़ियां सस्ती। इट्स नॉट पॉसिबल। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। हम कस्टमर्स को एक लिटरली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी गाड़ी लेकर आइए, एंड इट हैज हैपेंड, आप अपनी गाड़ी हमारे पास लेकर आइए, आई विल मेक अ लिस्ट, ओके। आपको ये मेरे को स्पेयर पार्ट चाहिए एक रेस्टोरेशन के अंदर, ये आप मुझे सारा ला के दे दो एंड गिव मी 1 लाख रुपीज एज माई लेबर टू बिल्ड योर व्हीकल। आप सब कुछ मुझे ला के देखो और कॉस्ट कैलकुलेट करके देखो कि कितनी आती, कि जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं या XYZ लोग चार्ज कर रहे हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स वाले चार्ज कर रहे हैं, वो कैसे चार्ज कर रहे हैं। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स इन डिफरेंट वर्कशॉप्स कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, यू नो, वी कांट गेट इनटू दैट कि हर बंदे का काम किस तरीके से एंड हाउ ही वांट्स टू रन हिज बिजनेस, वर्कशॉप टू वर्कशॉप। एग्जैक्टली। सो मेरे को अपने काम के बारे में पता है, एंड आई नो कि हाउ मच मनी इज गोइंग इनटू माय बिल्ड, हाउ मेनी आवर्स आई एम पुटिंग इनटू वन प्रोजेक्ट, एंड यू वोंट बिलीव इट, इतनी मेहनत करने के बाद द मार्जिन इज पीनट्स। वी ओनली आर प्लेइंग ऑन वॉल्यूम्स, और वो भी एक रोलर कोस्टर राइड है यार। So if I am to put some metrics just to give a perspective or understand the perspective, एक अगर मैं कहता हूँ रिस्टोर करने में टाइम कितना लगता है पहले? To be average, my place, if I have a work, minimum 3 months. 3 महीने लग गए, that is 90 days let's say to restore a gypsy. जिप्सी गाड़ी आज की डेट में अगर कोई आपके पास रॉ कंडीशन में लेके आता है विच ही वांट्स टू गेट रिस्टोर्ड और शी वांट्स टू गेट रिस्टोर्ड, उसकी कॉस्ट कितनी आती है अप्रॉक्सीमेटली? सी रॉ व्हीकल करंट सिनेरियो, मायापुरी का रेट बता रहा हूँ, चलो आई टॉक अबाउट मायापुरी, ओके, फिगर अबाउट बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम अ डीलर और समबडी। मायापुरी के रिटेल जिसमें गाड़ियाँ बंद हैं, नॉट फंक्शनल कार्स, 2015 मॉडल की रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 330 एंड इट कैन गो अप टू 4 लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द कार। उसमें उन्होंने कितना काम ऑलरेडी कर दिया है, या वो गाड़ी बिल्कुल ही स्क्रैप के अंदर एज इट इज जंग से लाके खड़ी करी हुई है। सो इट बेसिकली डिटर्मिन्स द कॉस्ट व्हाट दे हैव पुट इन ऑन द व्हीकल और दे हैव नॉट पुट इन ऑन टू द। अब हमारे पास कॉल्स आती हैं कि ऑक्शन की गाड़ियों की प्राइस इतनी कैसे हो सकती है। इट इज द कॉस्ट, यू नो। आप जाओ तो सही, सर्वे करो मार्केट के अंदर, ओके। और कोई बता हमारे को बोलते हो जी लाख लाख रुपए में जिप्सियां मिल जाती है, हम उनको बोलते हैं हमारे को लाख रुपए में आओगे, मेरे को 10 गाड़ियां दे दो, आई विल बाय इट नाउ। Right now, I'll buy, if I can get a vehicle, 2015 vehicle for 1 lakh rupees, straight away, please take money from me. I will buy 10 cars straight away. And I will sell the vehicle and I will make the vehicle in 5 lakh rupees. मारुति वाले बोलेंगे तो हमें भी खरीद के देते हैं, ठीक है। नहीं मिलती हैं यार आदिया। आज की डेट के अंदर, अब देखो मैंने पहले हम 98 मॉडल 2000 मॉडल लेके करने शुरू कर देते थे, यू नो, यूज्ड टू गेट चीपर मॉडल, बेकार उस टाइम पे स्क्रैप पॉलिसी नहीं होती थी तो इंजन जोन सब कुछ मिलता था, यू कुड एक्चुअली बिल्ड एंड असेंबल अ होल कार। आज की डेट के अंदर वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज गाड़ियां कटती नहीं है। अब गाड़ियां जो ऑक्शन में भी आ रही हैं उनके अंदर आपके नंबर्स ही नहीं है, तो देन तो बेसिकली you're hardly like you're right, you're not making anything because I mean 4 लाख रुपए की अगर गाड़ी आपके पास आ रही है, अब मैंने जैसे बताया कि मेरा करंट पैकेज 675 का है प्लस रजिस्ट्रेशन है, तो उस 275 के अंदर मुझे पूरी गाड़ी रिबिल्ड करनी है, मेरी लेबर है, मेरी कॉस्ट है, मेरे स्पेयर्स हैं, सब कुछ आपके सामने, क्योंकि गाड़ी खड़ी है,
हाँ। आपने खुद देखी है हाँ। कि इसके अंदर कितना पैसा लगा होगा, मगर गाड़ी ऐसे तो नहीं तैयार होगी ना। I mean, I told you the moment I saw it, even under the bonnet, it looks practically brand new. And So this when is, you- you're saying, a 2015 15 model. So now we're only catering to 15 model these days. So मतलब हम लोग we get little shocked, हमारे को जब इंस्टा में डीएम वगैरह आते हैं and we get very weird questions. अगर हम उनको रेस्टोरेशन answer भी कैसे करें? में अगर रेस्टोरेशन में इतना वो हाल है तो देन तो गुड ओनली यू स्टॉप प्रिपेयरिंग रैली See now व्हीकल्स. what is happening is, again this is my point of view, maybe I might be wrong. हाँ. आज की डेट के अंदर लोगों को एक सेकेंड हैंड गाड़ी, एक कस्टम बिल्ड और एक रेस्टोरेशन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, विच आई थिंक आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन क्वाइट अ बिट. आप कभी मार्केट में जाओगे, आप कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर आते हो तो आप जाओगे, गाड़ी को देखोगे, गाड़ी को चलाओगे, पैसे दोगे जिसकी भी गाड़ी है और उठा के ले आओगे, राइट. फिर आप किसी वर्कशॉप में जाओगे, बहुत अच्छी बहुत रेयर, मैं जिप्सी की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर व्हीकल. ठीक है. उसमें टायर भी डलवाओगे अपने हिसाब से, राइट. आपके पास फ्रेश पेंट नहीं होगा, कोई भी जिप्सी आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, तो रेयर है. आई विल से ओनली 10%, मे बी दैट नंबर इज ऑल्सो मोर दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट. हाँ. मैंने पर्सनली सिविल्स की गाड़ियाँ भी देखी हैं. आप उसके ऊपर जाओगे, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी चल रही है, यू वांट टू सेव दैट मनी एंड यू वांट टू गेट इट डन, आप चलाते रहो. अब लोग लेके जाते हैं मायापुरी से एंड स्लो एंड करके वो करते रहते हैं. मतलब दे विल नॉट रियलाइज दैट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे हैव स्पेंट द सेम अमाउंट ऑफ मनी व्हिच आई एम आस्किंग इन वन गो, नॉट एग्जैक्टली इन वन गो, ओवर 3 months, राइट. आप गाड़ी परचेज करने जाओगे, सेकेंड हैंड गाड़ी, आप सिर्फ टेस्ट ड्राइव करोगे, लेके चले जाओगे, उसके बाद अपने आप खर्चा करोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी. यू नो दैट इज व्हाट अ सेकेंड हैंड व्हीकल इज, राइट. हम कस्टम बिल्ड करते हैं, telling everybody that every nut and bolt will be brand new on the vehicle. There are certain components in a Gypsy which are not replaceable, but overall, which are your engines, your gearboxes, and your crowns. आपको ये पता होगा कि you know when we get these cars बंद होती हैं, we also gamble. हमें नहीं पता होता कि गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर कितनी लाइफ है, Correct. उसमें कितना सामान डलेगा. Now I'll give you the explanations on this. Yeah. Okay, what we keep in mind and what buffer we keep, you know, we have to keep a lot of things in mind. जब हम ये गाड़ियाँ लेके आते हैं आराध्या, हमें खुद रिस्क होता है कि जब हम किसी कस्टमर के लिए गाड़ी लेके जा रहे हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम द मनी दैट दे आर पेइंग फॉर, राइट. फुल्ली रिस्टोर्ड, 100% फंक्शनल इन ऑल एस्पेक्ट्स. दैट्स माई मोटो एंड दैट्स व्हाट माई कस्टमर इज डिमांडिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट व्हेन ही इज स्पेंडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. Right. जब हम ये ऑक्शन की गाड़ियाँ लेकर आते हैं ना, हम बॉडी लाइंस देखते हैं, हम चैसी देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर सारे जितने पार्ट्स हैं वो लगे हुए हैं. वी आर नॉट बॉदर्ड कि इंजन के अंदर वो 1 लाख किलोमीटर चला है, वो 10 लाख चला है, या वो सिर्फ 10,000 चला. Correct. राइट. हमें स्टिल खोल के करना है, बिकॉज हमें इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री पता ही नहीं है. Correct. आपका 4x4 कितना चल गया होगा, नोइंग द फैक्ट कि आर्मी ऑक्शन की गाड़ी है, आर्मी वालों ने कितना यूज़ पहाड़ों पे करा है, कभी यूज़ भी ना करा हो 4x4, हो सकता है. और आपका फ्रंट व्हील जो गियर है, आपका जो फॉरवर्ड गियर है, गियर बॉक्स है, वो मेन गियर बॉक्स आपका कितना चला होगा. एवरी कार रेयर होंगी जो 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर चली होंगी, वरना लाख किलोमीटर ऑलमोस्ट चली होती हैं गाड़ियाँ. सो कैन इमेजिन द वेयर एंड टेयर ओवर द ईयर्स, मेटल फटीक, सब कुछ होता है. सो व्हेन वी बाय दिस कार्स, हमारे का एक रिस्क है कि जब हम एक कस्टमर को हम गाड़ी देंगे तो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो सही होना चाहिए, लेकिन कस्टमर को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा भी एक रिस्क फैक्टर होता है. यू नो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये गाड़ियाँ हम रॉ लेकर आते हैं, कोई फंक्शनल लेकर आते हैं. जो फंक्शनल गाड़ियाँ भी होती है ना, उनको भी हमें खोलना ही पड़ता है, खोलना ही पड़ेगा. बिकॉज यू कांट ट्रस्ट दीज गाइस, Correct. राइट, कि उन्होंने डाला किया. हमारे पास कितनी सारी ऐसी गाड़ी होंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट लेटली, कितने सारी गाड़ियों के गियर बॉक्सेस खराब निकले. आई एम टॉकिंग अबाउट 4x4 ट्रांसफर केसेस, बहुत खराब निकले हैं आराध्या, which cannot be overhauled, which cannot be repaired, and you have to replace. Currently, 4x4 transfer case for a Gypsy is nothing less than 40,000 rupees in a second-hand market, which goes up to 45,000 rupees. Transfer case. Yes, sir. And if I am to put a number to the gearbox का cost, अगर मान लो वही मैं कह रहा हूँ. So when we buy these cars, so मेरे को हमारा जो X cost है वो बढ़ जाता है from a certain X जो मुझे पड़ी है cost यहाँ पे, उसके अंदर मेरे को अपनी गाड़ी के अंदर एक फिक्स 50-60 हज़ार रुपये लेके चलना पड़ता है. कि कल को मेरा क्राउन खराब निकलेगा, तो अगर मैं नया तो नहीं डालूंगा, मैं सेकेंड हैंड डालूंगा, सेकेंड हैंड को भी ओवरऑल करूंगा. उसके अंदर 4 बेरिंग्स डलते हैं, एंड यू नो यू हैव टू डू इट. करेक्ट. अब आपने क्राउन खोला है, आपका क्राउन व्हील, अब मैंने डिफरेंशियल तो नहीं वहाँ सड़क पे और जंक यार्ड में खोल रहा, मैं क्राउन तो घर पे आके ही खोलूंगा, वर्कशॉप में खोलूंगा. राइट.
सो व्हेन आई ओपन इट अप एंड आई सी इफ माय क्राउन व्हील इज बैड, अंदर के टीथ कटे हुए हैं, वो हमिंग नॉइस करेंगे. लॉट ऑफ मतलब जिप्सीज के अंदर सिर्फ हमिंग नॉइस की आवाज़ है. राइट. ठीक है. 4x4 के अंदर भी सीटी की आवाज़ है. हाँ. लेकिन 4x4 के अंदर ये होता है कि 10% सीटी की आवाज़ चलती है, बिकॉज इवन ब्रांड न्यू गियरबॉक्स में हल्की सीटी की आवाज़ आती है. सो अ व्हीकल विच इज ऑलमोस्ट लाइक 10 years old या 15 years old, उसमें आएगी हल्की बहुत. Correct. वी कैन नॉट इवन अगर आप गियरबॉक्स को ओवरऑल भी करोगे ना, वो आवाज़ 100% नहीं खत्म होती है. ओके. मेरे से नहीं हुई है. Correct. मतलब कोई और कर सकता हो, बट मेरे से नहीं हुई है ओवर द इयर्स. क्योंकि वो आपकी शाफ्ट्स हैं, आपके बेरिंग्स हैं, आपके सिंक्रोनाइजर्स हैं, आपके बहुत कुछ है जो चेंज होता है. एंड मारुति से भी वो पार्ट्स नहीं मिलते हैं कभी कभी. यू नो, बैक ऑर्डर पे बहुत पार्ट्स होते हैं. मारुति में भी आज की डेट के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो बैक ऑर्डर के ऊपर है. अब आज की डेट के अंदर आपको फ्रंट बम्पर नहीं मिल रहा. यू नो, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. 1400-1500 रुपये का बम्पर है, लेकिन बम्पर नहीं मिल रहा. आपको प्रॉपर शाफ्ट्स भी मारुति से मिल रही. बैक ऑर्डर के अंदर कितने शाफ्ट्स के ऑर्डर्स हैं फ्रॉम आर्मी ओनली, उनको नहीं मिल रहे. ओह माय गॉड. राइट. तो हमको जब ये गाड़ी बिल्ड करते हैं तो हमारा भी एक बहुत बड़ा इसमें रिस्क फैक्टर होता है. क्योंकि कस्टमर को तो पता है कि यार उसने अमन को पैसे दिए हैं तो मुझे तो सही चाहिए. पर अमन का भी एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि जो मैं गाड़ी लेकर आऊँ उसके अंदर मेरा इन चीज़ों में खर्चा ना निकले. करेक्ट. एक्स्ट्रा. अगर हमें एक अच्छा पीस मिल गया, वो हमारी एक्चुअल सेविंग है. एंड देन गाड़ी को डेंट पेंट करना, बॉडी शॉप में स्ट्रिप डाउन करना, नीचे एंटी रस्ट करना, एक एक नट बोल्ट डालना, एक मारुति के अंदर, जिप्सी के अंदर 1,10,000 रुपये की एसेसरीज जल जाती हैं. ठीक है. देयर इज अ कॉस्ट विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,10,000 रुपीज. जब आप सारे पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, इंजन पार्ट्स ये करते हो, फिर आपके टायर्स हैं, आपके रिंस हैं, आपके बाकी मैकेनिकल एस्पेक्ट है, आपकी डेंटिंग है, पेंटिंग है, आपकी लेबर है, सीट्स हैं, बहुत कुछ है. इट्स जस्ट नॉट अ व्हीकल. If you calculate, like I said, 396 parts, you calculate each part. जिप्सी के certain parts are very very cheap, पर मिलते नहीं हैं. 7 रुपये का भी सामान है जिप्सी के अंदर. बम्पर इज जस्ट 1400-1500 रुपये का. डैशबोर्ड इज जस्ट 2,000-2,100 रुपये का. हाँ. यू नो, इवन चीपर स्टफ नहीं मिल रहा है सामान. आपके जो क्लस्टर मीटर का जो आगे का कवर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 42 रुपीज़ का, वो नहीं मिल रहा, बंद हो गया. क्या करोगे आप? माय गॉड. हमें साइड के ग्लासेस इजीली अवेलेबल नहीं होते जिप्सी के डोर के. हाँ. और कितने का है? 456 रुपए का हाँ, साइड के शीशे डोर्स के. हाँ. और 456 रुपीज़ के नहीं मिलता. कितनी बार ऑर्डर दे चुके हैं, आता ही नहीं है. ओके. सो हम कस्टमर्स को पता, मतलब जो जिसको समझ है आराध्या, वो समझ रहा है. लेकिन सम पीपल आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. हमको इंस्टाग्राम के ऊपर हमें बहुत सारे रूड मैसेजेस आते हैं. यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो हमें रेट दे कर रहे हो, आप क्या नई गाड़ी हमें दे रहे हो? हमें ऐसे सवाल आते हैं. तो आप प्राइस जो मांग रहे हो, ये कैसी प्राइस है? आप तो लूट रहे हो हमें. यू नो, सो देयर इज नो आंसर टू दिस. नीदर हमने वो देना भी छोड़ दिया. एंड वी हैव नॉट, मतलब मैंने अपने दिल पे भी वो लेना छोड़ दिया. आई हैव कम टू अ सर्टेन पॉइंट, दिस इज माई कॉस्ट, प्लीज कम चेक माई प्रोडक्ट, इफ यू लाइक इट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर. ठीक है. अब लोग बोलते हैं जी गाड़ियाँ एक रखो टेस्ट ड्राइव के लिए. दैट्स नॉट पॉसिबल. व्हाई वुड आई कीप अ व्हीकल व्हिच इज फॉर टेस्ट ड्राइव? Doesn't make sense considering it's restored. So what are you planning to do to up your game as Auto Attitudes? Rather, there is nothing left that I've done on this vehicle which I can. The only thing that I can say is that we build good cars. And ऐसा नहीं है कि Auto Attitude से गलती नहीं होती है. We accept our mistakes and we ready to accept it also. अब आप मेरे को राधे एक बात बताओ. आपने मेरे को कॉल किया था एक जिप्सी के लिए, मैंने आपको एक सर्टन प्राइस बताई. आपने मेरे को ऑर्डर दिया, आपने मेरे को पैसे दिए एज एडवांस, मैंने आपको एक गाड़ी हैंड ओवर कर दी. मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एवरी कस्टमर एंड एवरी क्लाइंट इज first 2,000 kilometers you'll have to be gentle with the vehicle. Do not expect a vehicle to be driven at 100 की स्पीड और जलाओ, क्योंकि इंजन नया है, रन करना पड़ता है. इन दिस बिकॉज ओवर द इयर्स आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि इसको 2,000 किलोमीटर चाहिए सेटल डाउन होने के लिए. इसमें कोई निबलिंग इशू है, कहीं से कोई खड़क आ रही है, कोई लीकेज हो गया, यू नो, हैंड बिल्ड है. एवरीथिंग इज हैंड बिल्ड. एवरी नट एंड बोल्ट इज पुट वन बाय वन. करेक्ट. हमसे भी गलती हो सकती है, वी ह्यूमंस हैं, राइट. आप वो 2,000 किलोमीटर तक पेशेंस नहीं दिखाओगे गाड़ी को, वो कुछ भी हो सकता है. मैं कह रहा हूँ कि ना भी हो भी सकता है. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बंदा मेरी जिप्सी को ब्रांड न्यू मेरे शोरूम से लेके स्नो में जाके हैंग करी जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? एक बंदा, मैं गाड़ियाँ बिल्ड कर रहा हूँ रोड वर्दी के लिए. मैं गाड़ियाँ बिल्ड नहीं कर रहा कि वो पानी में जाके पत्थरों पर चढ़ा के या OTR में जाके तोड़े.
ठीक है, that is your call. You know, I am not going to vouch for something you're going to break. I am going to vouch for something which is going to be roadworthy. And if you want that, if you're planning to do that, then you let me know. No, even if you do it, I cannot bear the cost if you break down there. No, what I mean is, if that person is wanting to use for extreme off-road, then he's supposed to there are tell certain you. things you have to do it. Correct. Right? You have to strengthen your differentials, Yes. you have to put guards, you have to do this. Yeah. But again, breakage is bound to happen. आप करोगे ही करोगे. कल को आप सीधा एक OTR करते हो, सबसे पहले आपका बम्पर और आपकी लाइटें टूटती हैं. Correct. ठीक है. Understood. अब आप 4x4 डाल रहे हो, 4x4 के अंदर जिप्सी का जो बहुत वनरेबल भी है और बहुत स्ट्रांग भी है, आप 4x4 के अंदर किसी को आप टोचन कर देते हो और आप झटके मार रहे हो, वो टूटेगा ही टूटेगा. टूटेगा ही टूटेगा. डिफरेंशियल क्राउन टूट जाएगा, उसका पिनियन टूट जाएगा, उसकी पिन स्नैप कर जाएगी, उसके स्टार्स निकल जाएंगे, डिफरेंशियल खुल गया, एक्सेल्स टूट जाएंगे, डिफरेंशियल्स बेंड हो जाएंगे. कौन जिम्मेदारी लेगा? Are you now planning to also move ahead of gypsies? I mean, gypsies तो continue आप करोगे ही करोगे, because it's been like a part of your life, I would say. But apart from that, in order to grow auto attitudes to another level, When Jimny came in, I thought Jimny has a lot of scope. We started doing a lot of accessories. I did pretty well during those first 2-3 months because I was getting everything from Japan. पर आज की डेट के अंदर सब कुछ ताइवान से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. It is easily accessible. Competition is quite a bit. So मैं भीड़ भड़के में नहीं आना चाहता. To be very honest, if I'm doing something, I want to be completely different. What I want to do, and I can offer something different to my clients. लोग मेरे को बोलते हैं आप थार नहीं करते, आप नहीं करते. I'm a hardcore guy. I build cars. मेरे को एसेसरीज जमता नहीं है कि मेरे पास थार आई है, मैंने ग्रिल लगा दी, लाइट लगा दी, टेल लाइट लगा दी. इट्स इजी मनी एंड द टर्न अराउंड पीरियड फॉर योर मनी इज क्विक ब्रदर. मेरे को किक नहीं आता है. आई नो आई सिट फॉर मंथ्स ऑल्सो. आई डोंट हैव वर्क. आई सिट, मतलब 6-7 महीने आई पे एवरीथिंग फ्रॉम माई पॉकेट इफ आई डोंट गेट वर्क. Because this is all related to order basis. ऐसा तो है नहीं कि मैं सेल परचेज कर रहा हूँ. Correct. नहीं, कोई साल के अंदर 2 गाड़ियाँ किसी कस्टमर की जो हमारे, और हम सेल भी करते हैं, उन्हीं गाड़ियों को हम सेल और प्रमोट करते हैं जो मेरी बिल्ड है. Outside I do not sell because I don't know about the vehicle. Even somebody is calling me and taking a risk on his money and giving me 8 lakh rupees or 7 lakh rupees or 5 lakh rupees. It's my face value. Yeah. He's trusting and my brand. तो मैं गलत नहीं कर सकता. तो मुझे मालूम है कि आज की डेट के अंदर मैंने किसी गाड़ी को बनाया है तो मुझे मालूम है उसमें क्या गया हो, बेशक वो मेंटेन्ड है नहीं है. आई डू माई चेक पॉइंट्स, आई रिस्टोर दैट व्हीकल एज पर माई दिस थिंग एंड आई सेल इट ऑफ. राइट. ठीक है. या कस्टमर का डायरेक्ट सेल कर देता हूँ, या मैं बाय द कार एंड वी सेल इट. वी कीप अ सर्टेन मार्जिन एंड वी सेल इट ऑफ, व्हिच इज, वो मेरा हक है. अंडरस्टूड. बट मैं किसी को गलत करके नहीं दे सकता कि मैंने ऐसी दे दी और वो गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाए. वो नहीं करूँगा मैं. ओके. मैकेनिकल इशू कभी भी किसी टाइम पे भी आ सकता है. करेक्ट. बट कोई वैसा नहीं है कि हम लोग ज़बरदस्ती कोई चीज़ गलत कर रहे हैं और कुछ हो रहा है. बट येस, in 2025 I have certain plans. I want to come into Thars, like I said, कि मैं नहीं आना चाहता था. But yes, I want to come into Thar. Correct. I want to create a retail outlet and an e-commerce very soon. कि we can offer more services to my clients who not only have gypsies but they have Thars also. Right. अब थार के अंदर बेसिकली अब रॉक्स आ गई है, सब कुछ है उसके अंदर. फिर भी लोग क्या चेंज करा रहे हैं, टायर्स हैं, रिम्स हैं, शॉक्स आएंगे. ठीक है, जिसको लिफ्ट करानी है, अपग्रेड्स तो हैं ही हैं. करेक्ट. दीज आर बोल्ट ऑन अपग्रेड्स. तो देखो ऐसा है, जितना पैसा आप कंपनी में डालोगे, जितनी एसेसरीज आप डालते रहोगे, उतना आप मल्टीप्लाई करते रहोगे. करेक्ट. और इसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत है आराध्या. इट्स जस्ट नॉट मी. ठीक है, देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस फॉर 50 years. ठीक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्पीट विद दोज पीपल व्हेन आई हैव नॉट डन एसेसरी वर्क इन माई ईयर. राइट. मैंने किया ही नहीं है. सो इट इज गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी एंड गोइंग इनटू अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर. तो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क. बट येस, 2025 विल हैव समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी सून. So I think आज we've done a very long conversation today, Aman Bhaiya. Yeah. So I think I think a detailed thing, huh? very detailed conversation on multiple aspects like the world of motorsports in India and abroad a little bit. We've spoken a lot about your history in motorsports, how you got evolved, how you became what you are today. Not just in motorsports but also in building vehicles like the Gypsy. Correct. And I think Godspeed to you in that way, that Thank you so much. may you be where you want to be in 2025, because simply because I truly believe the kind of work you're doing, you're putting
more than your blood and sweat into Oh, it, I feel. मतलब- Blood and sweat would be an understatement. मतलब सीरियसली आराध्या, मतलब इट्स लाइक जब हम बनाते हैं ना ये और हम Because I've seen you work. I've seen you work. हाँ. सो इट्स क्रेजी, मतलब लोग आपके हमारे पास आके कहते हैं आपने किया क्या काम, यू नो, मतलब इट्स अ ब्रेकिंग थिंग फॉर यू, Yes. हार्ट ब्रेकिंग. हाँ. जब हमें आके ये बोले ना आपने किया क्या, मतलब इट्स एक मिनट में तू मत ले भाई मेरे से गाड़ी. मैं बोल देता हूँ आई हैव बिकम यू You have to be that way. मतलब मेरे को लोगों ने ये भी बोल दिया आप रूड हो गए क्योंकि मैंने मना कर दिया काम कर. एंड दे पोस्टेड ऑन माई गूगल हाँ. कि ये रूड है क्योंकि मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने, क्योंकि उनको चाहिए गाड़ी वो 3 लाख रुपए वाली, और मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, तो मैं रूड हो गया. तो हम ऐसे रूड बन जाते हैं. आई थिंक वही है ना, वो अपने जाटो में बोलते हैं ना कि कम बोलो मगर बुंडा बोलो थोड़ा सा. मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं मुंह फट बोलता हूँ. हाँ. मेरे को किसी का ना तो डर है ना किसी का कुछ है. हाँ. आई नो व्हाट माय प्रोडक्ट इज, हाँ. आई नो व्हाट विल इट डू इन नाउ इन ईयर्स. Yeah. अगर आप मेंटेन करके रखो इट्स एवरी वे, है ना, तो अच्छा लगता है. बट देन राधे मार्केट अच्छी नहीं है. यहाँ तो अभी what you're saying is साउथ के आप देखो, अब मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, हाँ. मैंने किसी की शक्लें थोड़ा देखी है. I've not met them also. 95% of the clients have not met in my life. जिनको मैंने गाड़ियाँ बना के दी हैं. 1000 अगर मैंने जिप्सी बनाई, 1000 में से मैंने 100 लोगों को मिला हूँगा यार बस. Wow. That's how I built my name. And I'm the oldest guy who's still with this. Yes. वो I सब was आए हैं, just, उड़ I गए was just हैं. telling Afzal this only. I'm the oldest and the one who started. पूरे इंडिया में 4 लोग ही हैं जो ये काम कर रहे हैं जिप्सी का, जो सस्टेन करके कर रहे हैं, जो अभी अभी आए हैं, 3-4 साल पहले ही आए हैं. हाँ. मेरे को करते हुए 14 साल हो गए. 14 years. So once again, Bhaiya, thank you so much for putting Anytime, out man. It was time a- today. And this is definitely a not long the due last thing. Sorry for that conversation. first. And this is not the last conversation. We'll have many more conversations as you evolve, as I evolve. Absolutely. And Godspeed. Thank you so much. Anytime, brother. Thank you so much, brother. Thank you so much for coming in.